guys, first of all wishing you all a very happy Baisakhi, and I have come back again with a very beautiful Baisakhi makeup tutorial. Now in this makeup tutorial I will be sharing all the tips and tricks and all the makeup products that I've used to create this beautiful makeup look. अब इसमें मैंने थोड़ा सा इंटेंस आई मेकअप किया है, सो आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स एंड all the steps that how to create this intense eye makeup, and it's such a beautiful look. If you're not wearing it on Baisakhi, you can definitely do this look anywhere in any wedding or any upcoming festival. And if you have any questions regarding any step, please make sure you comment down below and let me know. I will be more than happy to answer your questions. Now without wasting your time, let's get started and let me show you guys how to create this beautiful makeup look. But before moving forward, make sure you guys subscribe to my channel, follow me on all my social media handles, and the direct links to my social media handles are mentioned down below. So let's get started. Let's start with the skincare. Skincare is very important. So I'm going to be using this rose oil from Pixie Beauty, which I recently received in their one of the PR packaging, and I've just started using this product. It will help in moisturizing your skin, and it's definitely an oil, so it will provide an essence and much needed moisture to your skin. Now next product which I'm going to be using is a beauty gold elixir from Farsali. Now Farsali kuch time ke liye band ho gaya tha, lekin they have come back again with the upgraded model of their product. So I'm going to be using this rose gold elixir. Love this product, you guys. It adds a glow on my face, dewy effect deta hai aur bahut अच्छे से मेरी skin को moisture भी करता है. Now once the skincare is done, let's jump on to doing our eyebrows. I first of all like doing my eyebrows when I'm doing intense eye makeup looks, and then I go forward with the base makeup. So I'm going to be using this L'Oreal Paris eyebrow pencil. First of all, I'm brushing my eyebrow hair in the upwards direction and just filling the eyebrow. फिल करने से पहले मैं एक आउटर लाइन बनाती हूँ अपनी आईब्रो के आसपास, जस्ट टू गिव इट अ शेप, सो दैट आई वुड नो कि मुझे इसी बाउंड्री के अंदर अपनी आईब्रो को फिल इन करना है. एंड देन अगर थोड़ा सा आपका लाइन इधर उधर हो जाए, सो यू डोंट हैव टू गेट वरीड. जस्ट यूज़ अ कंसीलर एंड अ पॉइंटेड शार्प ब्रश, एंड देन यू कैन जस्ट क्लीन दोज एरियाज. बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है. आई एम मेंशनिंग दिस अगेन, जस्ट टेक अ वेरी लिटिल बिट प्रोडक्ट ब्रश पे, और उससे आप अपने एक्स्ट्रा एरियाज को क्लीन कर सकते हो. वंस दिस इज डन, लेट्स प्रेप आवर आईज. सो आई एम यूजिंग दिस फुल कवरेज कंसीलर फ्रॉम नार्स, which is in the shade ginger. Now I have a very oily and greasy eyelids, and trust me guys, if you don't have an eye primer, go for a full coverage concealer, and my favorite is NARS. So I'm going to be taking a little bit concealer, applying it on both of my eyelids, और उसके बाद एक फ्लैट जो आई शेडो ब्रश होता है उससे मैं ओवरऑल इस जो कंसीलर है उसको स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से पूरी आईलिड के ऊपर. फिर बोलती हूँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है. जब एक बार स्प्रेड कर दिया है, हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे. वी वोंट बी डूइंग एनीथिंग उसको सेट करने के लिए. एक बार वो सेट हो जाए आफ्टर कपल ऑफ सेकेंड, उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा लूज़ पाउडर लगाएंगे. दोनों साइड करना है ये चीज़, एंड अगेन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है. वंस दैट इज़ डन, आई एम गोना बी यूजिंग अ क्लीन ब्रश टू remove all the extra particles and all the extra powder from my eyelids. Now let's get started with our eye makeup. So I'm going to be taking a rose gold palette from Huda Beauty, which is one of my favorite eyeshadow palette, perfect for all the wedding and bold looks. So I'm going to be taking this first shade, which is called as Demure. I hope that's how we pronounce it. I'm going to be applying it all over my eyelid. इट विल बी कॉल्ड एज माई ट्रांजिशन शेड, क्योंकि मैं इसको पूरे आईलिड पे अच्छे से लगा रही हूँ एक क्लीन ब्रश के साथ. देन आई एम गोना बी डूइंग अ हाफ कट क्रीज. तो हाफ कट क्रीज मैं कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके मैं हाफ कट क्रीज कर रही हूँ यूजिंग अ फ्लैट एंड अ पॉइंटेड शेडर ब्रश, डूइंग द सेम थिंग ऑन द अदर साइड ऑफ माई आई एज वेल. एंड देन कुछ टाइम के बाद मैं उसको छोड़ देती हूँ लगाने के बाद फॉर लाइक लेट्स से 1 or 2 minutes, ताकि वो सेट हो जाए और मैं एकदम से उस पर आई शेडो नहीं लगाती हूँ. नेक्स्ट शेड विच आई एम गोना बी टेकिंग इज़ अ हैना शेड को मैं अपने जहाँ पे कट क्रीज किया है वो उस एरिया पे लगा रही हूँ यूजिंग अ वेरी स्मॉल पॉइंटेड शेडर ब्रश, जस्ट मेकिंग श्योर कि वो पूरी आँख पे अच्छे से लग जाए. Now I'm going to be taking a combination of 2 shades, which is Dubai and Trust Fund, और इसको मैं exactly उस spot पे लगाऊंगी जहाँ पे मैंने henna color लगाया था, क्योंकि this is a shimmer shade and I want to add little glow over that color, और वो थोड़ा सा shimmery effect भी देगा.
Now once that is done, I'm going to be taking our next color, which is Men Eater. Wow, such a unique name. So ये बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है और इसको मैं अपने आउटर वी कॉर्नर्स पे लगाऊंगी एंड आई एम ट्राइंग टू ब्लेंड दिस कलर अपने कट क्रीज की जो बाउंड्री है उसके साथ. आई एम जस्ट गोना बी कीप ब्लेंडिंग इट ताकि वो बहुत स्मूथ टच दे और ब्लेंडिंग बहुत अच्छी लगे, ऐसे लगे कि दोनों कलर्स ऑलरेडी मिक्स हो चुके हैं. Once that is done, on the outer V corner, I'm going to be taking our fifth color, which is black truffle. और उसको सिर्फ मैं अपने outer V की जो corner है वहाँ पे बिल्कुल end में लगा रही हूँ using a small brush. And I am not taking too much of product, just very little bit product on the outer V corner and just keep blending it out. उससे क्या होगा, एक depth create हो जाएगा. आपकी आई ऐसा लगेगा एक ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब डार्क से फिर थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा लाइट कलर. तो हमें उस तरीके का ट्रांजिशन बना रहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ. एक बार वो हो जाए देन यूज़ अ क्लीन ब्रश एंड स्टार्ट ब्लेंडिंग आउट द कॉर्नर्स ऑफ योर आई शेडो ताकि वो थोड़ा स्मूथ हो जाए और आपकी बाउंड्रीज हार्श ना लगे. Once your eye makeup is done, let's move on to the eyeliner. I'm using an Inglot gel eyeliner, which is one of my favorite eyeliner, you guys. I'm going to be using this eyeliner and then not winging it out too much. बिल्कुल अपनी लैश लाइन के पास लाके मैं इसको लगा रही हूँ, सिर्फ अपनी लैश लाइन को थोड़ा थिक करने के लिए. डूइंग द सेम थिंग ऑन द अदर साइड. आप चाहें तो कोई भी पेन आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, बट आई लाइक यूजिंग इंग्लॉट बिकॉज इट स्टेज एंड इट्स मैट और लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रांसफर प्रूफ है और बहुत जल्दी निकलता नहीं है. सो आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल. इवन इफ़ यू आर यूजिंग इट ऑन योर क्लाइंट्स, जस्ट गो विद दिस आईलाइनर. Now for my waterline, I'm using an NYX Cosmetic का white eyeliner और इसको मैं अपनी waterline पे all over नहीं लगाऊंगी, सिर्फ 3/4 पार्ट जो होता है आउटर साइड वहाँ पे लगाऊंगी, just to open up my eyes. उससे मेरी आँखें थोड़ी बड़ी दिखेंगी और ऐसा लगेगा बहुत खुली हुई हैं, बहुत अच्छा लुक आता है. So that's why I'm using it. Then I'm gonna be curling my eyelashes. कर्ल करने के बाद जो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ वो है Forever 52 का. बहुत इवनली उस मस्कारा को लगाऊंगी लेकिन कर्ल करने के बाद. स्पेंड टाइम करो जब भी मस्कारा लगाते हो. जेंटली आई एम अप्लाइंग इट ऑन द बोथ साइड्स. फेक आई लैशेज़ के लिए मैं समंथा आई लैशेज़ ले रही हूँ जो कि है हुडा ब्यूटी से, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. अब मैं इसको कैसे लगाती हूँ, लोग ट्वीज़र यूज़ करते हैं बट मुझे ट्वीज़र यूज़ करना नहीं पसंद है. आई लाइक जस्ट अप्लाइंग इट यूजिंग माई फिंगर्स. बहुत जेंटली मैं इसको लगाती हूँ, अपने आउटर वी कॉर्नर को स्ट्रेच करती हूँ और फिर बहुत जेंटली आई लैश को स्टिक ऑन कर देती हूँ. आई जस्ट कीप प्रेसिंग इट ऑन ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए और निकले नहीं. सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग एंड मेकिंग माई आई लुक सुपर ब्यूटीफुल. Now let's move on to our base makeup. I'm using a Huda Beauty foundation, which is a full coverage foundation, but it's a buildable foundation as well. अब मैं थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर ऐड करने के लिए क्या कर रही हूँ, अपना फेस ऑयल इसमें मैंने ऐड किया है ताकि थोड़ा सा वो मुझे डूई लुक दे. जब दोनों को मिक्स कर दिया फाउंडेशन और फेस ऑयल को, तो ओवरऑल मैं इसको अपने पूरे चेहरे पे लगाऊंगी अच्छे से, अपने फेस पे, चीक्स पे, आँखों के थोड़ा सा नीचे, नोज़ पे, इवन ऑन माई नेक एरिया. डोंट यू गाइज एवर फॉरगेट योर नेक एरिया. नेक पे लगाने के बाद यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर आई एम गोइंग टू बी इवनली ब्लेंडिंग इट आउट वेरी नाइसली. Now one thing I would like to tell you, I'm not using a dry beauty blender, I'm using a damp beauty blender. Damp beauty blender से क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो आपके ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जाता है एंड बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं रहता आपके फेस पे और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपका ओवरऑल फाउंडेशन. सो दैट्स वाई डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर इज़ लाइक यूजिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now for concealer, I'm using a cookie dough concealer from Huda Beauty. Again, it's a full coverage concealer. लाइट कवरेज नहीं है तो कोशिश करो जब एक बार इसको लगा लो. मुझे ऐसा लगता है कि लगाने के बाद मैं थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ देती हूँ ताकि वो मेरे स्किन पे सेट हो जाए. तो मैं उन एरियाज़ पे लगा रही हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्राइटन करना है अपने फीचर्स को और फिर उसको कुछ टाइम के लिए फॉर लाइक लेट्स से 3-4 मिनट्स के लिए मैं उसको छोड़ दूँगी. बट ये आप उन कंसीलर के साथ मत करना जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सो याद रखें. नाउ फॉर कॉन्टोर आई एम यूजिंग अ कॉन्टोर स्टिक फ्रॉम लॉरियल पेरिस. ये फाउंडेशन स्टिक थी बट मैं इसको एज अ कॉन्टोर स्टिक भी यूज़ करती हूँ और मैं इसको इवनली अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द चीक्स पे लगाऊंगी, अपने जॉ लाइन पे, नोज़ पे, जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ा शार्प इफेक्ट देना है, अपने फीचर्स को थोड़ा अपलिफ्ट करना है, वहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ. नोज़ और लिप एरिया के लिए मैं एक जो कॉन्टोर ब्रश होता है छोटा वाला, मैं वो यूज़ कर रही हूँ सो दैट कि ईज़िली लगा सकूँ और ईज़िली ब्लेंड भी कर सकूँ. नाउ यूजिंग अ बिग कॉन्टोर ब्रश आई एम गोइंग टू बी वेरी जेंटली ब्लेंडिंग इट आउट. मेक श्योर यू स्पेंड द टाइम वाइल ब्लेंडिंग और कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है और जब हम ब्लेंड कर रहे हैं तो
ये कोशिश करो कि ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रहे हो, नीचे की तरफ ब्लेंड नहीं कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपके फेस लिफ्टेड रहेगा और एक लिफ्ट जैसे फीचर होता है ना, छोटा भी लगेगा और फीचर्स को थोड़ा शार्प भी करेगा। लेट्स कम ऑन टू द कंसीलर पार्ट। कंसीलर को भी मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ और बहुत ही जेंटली कर रही हूँ। जब मैं अपनी आंखों के नीचे कंसीलर को ब्लेंड करती हूँ, आई ऑलवेज लाइक लुकिंग अप, ताकि वहाँ पे जितनी भी थोड़ी सी लाइंस हैं मेरी, वो सब अच्छे से कंसीलर में ब्लेंड हो जाएं और कहीं पे भी क्रीज ना आए। वंस दैट इज़ डन, आई एम यूजिंग अ नंबर 47 ब्रश फ्रॉम सफोरा और उससे भी मैं अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर रही हूँ, ताकि अगर कोई पार्ट रह गया है तो वो अच्छे से सेट हो जाए और कोई भी क्रीज ना रहे। नाउ आई एम यूजिंग अ एस्पर लूज पाउडर विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी अप्लाइंग द लूज पाउडर अंडर माई आइज़ और उन सब एरियाज़ पे जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है। ना आई डोंट लाइक टू बेक टू मच, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पाउडर लेके ब्यूटी ब्लेंडर पे लगा के एक्स्ट्रा रिमूव करके अपनी स्किन पे प्रेस करती रहती हूँ, ताकि वो मेरे कंसीलर को और बेस को सेट करे। और वो करने के बाद लेट्स मूव ऑन टू द ब्लश। आई एम यूजिंग अ orgasm blush from NARS and it is again my favorite. I'm going to be using on the apple of my cheeks. I don't like to smile when I am applying the blush, क्योंकि मैं को uplifted वाला फीचर चाहिए, तो इस वजह से मैं कभी स्माइल नहीं करती हूँ। I just keep my straight face and then I'm going to be applying it on the apple of my cheeks, on the nose. Now for highlighter, I'm using a Baisakhi cosmetic highlighter in the shade Champagne Pop, applying it on the high points of my cheeks. This one is my favorite highlighter, but I think Becca discontinued हो गया है recently. Smashbox ने शायद launch किया, so make sure you check it out. And once that is done, I'm also be going to applying the highlighter on my eyebrow bone, on the inner corners of my eyes. से क्या होगा, थोड़ा सा आपकी आँखों पे highlighted effect भी आएगा और थोड़ी आपकी eyes को open up भी करेगा। Now for my waterline, what I'm going to be doing is I'm using a henna shade from the eyeshadow palette और उसको मैं अपने waterline के नीचे थोड़ा सा लगा रही हूँ, just ताकि हमारा eye look complete हो। और दोनों साइड हमें ये करना है। If you want, you can use a black kajal, but I'm using a henna shade. Now for lipstick, I've taken a Forever 52 lipstick and a Huda Beauty Clear Gloss और इसको मैं अपने लिप्स पे लगा रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा लाइट पिंक कलर का शेड है। It is matching my outfit, so that's why I'm using this lipstick. Now it's a matte lipstick. It is looking like ये थोड़ा सा gloss lipstick है, but एक gloss नहीं है, थोड़े टाइम के बाद ये खुद dry हो जाए। Now here completes my makeup tutorial, you guys. I've curled my hair, I've created a very small bun, and then I've added jewelry, and this completes our look. I've also added a lenses, by the way, in case you're wondering कि मेरी आँखों पे मैंने कौन से लेंस लगाए हैं, तो सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है with the product details, कौन सा ब्रश यूज़ किया है। And if you still have any questions, please feel free to comment down below and let me know. I'll be more than happy to answer your questions. So here completes our look, and thank you so much for watching, and thank you so much for sharing all your feedbacks, and don't forget to comment down below. I will see you guys super soon एक नए वीडियो के साथ, but please make sure you guys subscribe to my channel, follow me on all my social media handles, and the direct links to all my social media handles are mentioned down below. But till then, take care, stay safe, and I'll see you guys super soon with a new tutorial. तब तक के लिए bye.